Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem F 3 sum from Code Forces round 799 division 4. Okay, so division 4 is probably easy, so this question will also be easy one. Okay, but I am making this one because kind of A, B, C, D, E were all easy. So before starting the video or before reading the question and the statement and generalizing it, let's just see. If you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies Newton School, just go subscribe this YouTube channel in which I am posting regular editorial videos. Not only this, videos related to blockchain also and other stuff. If you have any question, you can ask me in comment section also. You will probably have a video on that topic also. Okay, and in the end, before starting, if you haven't checked Newton School Pay After Placement program, just go check their Pay After Placement program, in which they will train you as a full stack developer, and after that they will also get you placed in different companies. Okay, most amazing thing, you don't need to pay even a single penny. That is like तुम्हें एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है until and unless you get placed in any of the company. Okay, and minimum CTC which they provide you is of 5 to 40 LPA. Now if you want to register or enroll for this program or want to explore about this, you can just go to the link in description. Okay, register in that link and you will get a follow-up. Okay, and you can also like register or enroll in their program. Now start with today's video. Given an array A of positive integers of length n, determine if there exist three distinct ijk such that ai plus aj plus ak ends in the digit 3. Question is quite simple, or you can say the statement is quite generalized, that we simply need to check if there exist three distinct indices such that sum of all these numbers at those indices results in the number which ends with a digit 3. Okay, now if you will see constraints for value of n, it is quite high. That means you can't afford an approach of n square or n cube. Okay, and value of n is, or value of a of I is also 10 raised 9. Now in the end you simply need to print yes or no. If there are three indices I, j, k, print yes, otherwise no. Okay, now let's just start with the approach discussion. So we generally have an array A. Okay, now suppose you need to check whether ai plus aj plus ak ends with some value that have 3 in the end. Okay, so simply अगर मैं बोलूँ कि ये जो टोटल, अगर मैं इसको लिख दूँ सम, ठीक है, तो you need sum which on modulo with 10 gives 3, right? Okay, अगर मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करूँ तो तुम्हें कुछ ऐसे 3 इंडिसेस चाहिए जिनका मॉडलो 10 करने से 3 मिले. ओके, दिस इज द जनरलाइज्ड क्वेश्चन, मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. ओके, नाउ so basically I need 3 numbers whose sum on modulo with 3 will give 3. okay, fine. अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो सिंपली देखो, कोई भी नंबर है, ठीक है, 1 2 3 5 3, अगर मैं इसको 10 से मॉडलो कर दूं तो ये मुझे क्या देगा, 3. तो किसी भी नंबर को अगर तुम 10 से मॉडलो कर देते हो तो उसकी लास्ट डिजिट मिल जाती है. दैट्स व्हाई I need 3 indices whose sum on moduling with 10 will give me a 3. okay, now how I am going to find those. अब बेसिकली एक चीज़ देखो कि क्या मुझे पूरी की पूरी एरे की ज़रूरत है. ठीक है, अगर मैं n क्यूब करने जाता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना है सच दैट कि मैं a ऑफ i प्लस a ऑफ j प्लस a ऑफ k फाइंड आउट करना है. तो मुझे अगर n क्यूब की अप्रोच कर सकता मैं, तो मैं क्या करता, सिंपली i पे ट्रीट करता, फिर i प्लस 1 से n तक जाता, फिर j प्लस 1 से k प्लस जाता. इट मीन्स नेस्टेड लूप्स का यूज़ करके मैं 3 इंडिसेस उठाता और सब में चेक कर लेता. ठीक है, बट राइट नाउ व्हाट आई एम हैविंग इज कि मेरे पास टोटल n नंबर्स है, राइट. ओके, नाउ एक चीज़ इससे क्या तुम जनरलाइज कर सकते हो कि मुझे एट द एंड करना क्या है, ai प्लस aj प्लस ak मॉडलो 10. ओके, मुझे ये चेक करना है. तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ai मॉडलो 10 प्लस aj
मॉडलो 10 प्लस ए के मॉडलो 10 और इस कंप्लीट का मॉडलो 10। ठीक है, अगर ये भी 3 है तो मेरा आंसर येस होगा, राइट। इट मीन्स कि तुम इन एरे के नंबर्स को, दैट इज इनिशियली गिवन जो एरे है, ठीक है, ए है, उस सब को मॉडलो 10 कर सकते हो। ठीक है, दैट वोंट हैव एनी इफेक्ट टू योर आंसर। ठीक है, बेसिकली जो तुम्हारा जनरलाइज्ड फॉर्म है क्वेश्चन का, वो तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो। दैट मीन्स कि मैं जो भी नंबर्स हैं एरे के, उनको पहले ही मॉडलो 10 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस एरे में, सपोज ये मेरी गिवन एरे थी, मैं इसमें नंबर्स कैसे स्टोर करवाऊंगा? अब ए आई मॉडलो 10, ठीक है, सारे नंबर्स का मैं ऑलरेडी मॉडलो कर दूंगा। ठीक है, मॉडलो 10 कर दूंगा। दैट वोंट हैव एनी इफेक्ट इन माई आंसर। ओके फाइन। अब जब मैं मॉडलो 10 कर दूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी। मॉडलो 10 करने के बाद पॉसिबल नंबर्स क्या होते हैं? 0 to 9 कोई भी नंबर तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी 0 1 3 4 7 6 7। ठीक है, और 9, मैक्सिमम वैल्यू 9, मिनिमम वैल्यू 0 आफ्टर मॉडलोइंग विद 10, आफ्टर मॉडलो विद 10। ठीक है फाइन। अब यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे, दैट पॉसिबिलिटी क्या है। अब तुम्हें इनमें से कोई ऐसे 3 नंबर्स चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसे 3 नंबर्स जिनको तुम ऐड करो और मॉडलो करो तो वो 3 दे दें, राइट। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। टोटल कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर मेरे पास ये गिवन एरे है तो इन 3 नंबर्स के कॉम्बिनेशन कैसे निकल सकते हैं। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे नंबर्स हैं एरे के, वो 0 से लेके 9 में लिमिट हो गए। ठीक है, तो मैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक कर सकता हूँ। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? 1 1 1, ये मैं ए आई ए जे और ए के की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5। ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम 1 की जो तुम्हें ज़रूरत है वो कितने 1 की ज़रूरत है? 3। ठीक है, तो क्या तुम देखो, मैक्सिमम किसी भी नंबर की जो तुम्हें एरे में ज़रूरत आएगी वो आएगी 3 टाइम्स। ठीक है, तो अगर मान लो ये तुम्हारी एरे थी, सपोज ये तुम्हारी एरे थी, ठीक, इस एरे में 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और मान लो 7 9 3 4, तो क्या तुम्हें इतने सारे वंस की ज़रूरत है? काइंड ऑफ मेरा मेन एम क्या है कि मुझे n क्यूब की अप्रोच फॉलो करनी है और मुझे ये n की वैल्यूज़ किसी तरह डिक्रीज करनी है। तो जो भी यूजलेस नंबर्स हैं, ठीक है, या फिर रिपीटेड नंबर्स हैं, मुझे उनको यूज़ नहीं करना है ताकि मैं n क्यूब अप्रोच फॉलो कर पाऊँ। अब यहाँ पे क्या मुझे ये वाले कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, दैट इज़ 1 1 2 या फिर 1 1 1, इसके लिए इतने सारे वंस की ज़रूरत है? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, मैक्सिमम मुझे कितने वंस की ज़रूरत है? 3। ठीक है, जब मेरा केस बनेगा 1 1 1। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 3 से जितने भी ज़्यादा वंस हैं उनको डिस्पोज कर सकता हूँ। ठीक है, इन वंस की ज़रूरत नहीं है। इन द एंड, इन द सेम वे, अगर यहाँ पे 2 2 2 होता, ठीक है, तो मैक्सिमम 3 टूज की ज़रूरत होती। तो अगर जितने भी 3 से ज़्यादा टूज होते उनको मैं डिस्पोज कर देता। ठीक है, तो इस वे में अगर मैं ऐसे ही करने जाऊंगा तो इस एरे की जो मैक्सिमम लेंथ मेरे पास रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? ये चेक करो सिंपली। मैक्सिमम वंस कितने हो सकते हैं? 3। और टोटल नंबर्स क्या हैं? कोई भी एक सिंगल नंबर 3 टाइम्स आ सकता है और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स मेरे पास क्या है? 9। और यू कैन से 0 to 9 to 10। ठीक है, और 10 नंबर्स मैक्सिमम कितने टाइम्स आ सकते हैं? 3 टाइम्स। तो मेरी जो n की वैल्यू है वो रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी? 30। n will be less than or equals to 30। ठीक है, तो मैं इस तरह से एरे की जो लेंथ है उसको रिड्यूस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो भी नंबर ऑफ वंस है या नंबर ऑफ कोई भी नंबर है, टू चेक वेदर उन तीनों नंबर्स का सम जो है वो मॉडलो 10 करने पे 3 होगा, वो ओनली 3 टाइम्स चाहिए एट मैक्स। ठीक है, अब बेसिकली एक चीज़ और बताता हूँ। राइट नाउ हमें क्वेश्चन में करना क्या है? हमें सिंपली येस और नो करना है। ठीक है, इसलिए हम n की वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं।
बट इन एनी केस हमें ये जो 3 इंडिसेस हैं वो काउंट करने होते, इन दैट केस हमें n की वैल्यू को ऑब्वियसली रिड्यूस नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू को रिड्यूस करने में जो हमारा चेक करने वाली चीज़ है दैट इज़ 1 1 1, अगर मुझे मैक्सिमम 3 1 चाहिए तो मैं अभी भी उनको चेक कर सकता हूँ आफ्टर डिस्पोजिंग दीज 3 1, ठीक है। तो दैट्स वाई आफ्टर रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ n आंसर वोंट गेट अफेक्टेड। ओके, दिस वॉज द कंप्लीट अप्रोच बिहाइंड द क्वेश्चन। ना अब मैंने क्या किया, मैंने n की वैल्यू को रिड्यूस कर लिया, अब मेरे पास n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 30, आई कैन सिंपली फॉलो n क्यूब अप्रोच, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 30, दिस इज अफोर्डेबल। ओके, तो सिंपली जस्ट गो लूप इन n वैल्यूज एंड जो जो नंबर्स हैं तुम्हारे पास सिंपली चेक करो, इफ सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स मॉडुलो 10 इज गिविंग यू अ 3, सिंपली प्रिंट yes, otherwise no। ओके, इफ आई विल शो यू द कोड फॉर दिस प्रॉब्लम, इट्स ऑल्सो क्वाइट सिंपल, ठीक है। हेयर इज द कोड। मैंने क्या लिया, एक वैल्यू वेक्टर का इनपुट ले लिया, एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया एंड उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, 0 से 9 तक के एरे मॉडुलो 10 करने में मेरे पास टोटल डिफरेंट कितने नंबर्स आने वाले थे 0 से 9, ऑब्वियसली मैंने उनकी फ्रिक्वेंसी काउंट कर ली, ठीक है, उन सबके नंबर्स की फ्रिक्वेंसी काउंट कर ली। अब मैंने एक सेपरेट वेक्टर बनाया वी, मैंने 0 से 9 तक इटरेट किया और सिंपली उस वेक्टर में मैंने क्या पुट कर दिया, जितने भी नंबर्स मुझे चाहिए थे, ठीक है, और यू कैन से रिड्यूस्ड एरे पुट कर दी, ठीक है। तो अगर मेरे पास 1 जो है वो ग्रेटर देन 3 प्रेजेंट थे तो मैंने अपनी एरे में खाली 3 1 डाले, न्यू एरे में, यू कैन से रिड्यूस्ड एरे में, ठीक है, और अगर 1 जो है वो लेस देन 3 प्रेजेंट थे तो मैंने जितने भी प्रेजेंट थे वो डाल दिए, ठीक है, सपोज टू। तो मैंने सिंपली क्या किया, जितने भी थे अगर 3 से ज़्यादा थे तो 3 डालो, अगर 3 से कम थे तो जितने भी हैं उतने डाल दो, ठीक है। अब मेरे पास वी में क्या हो गया, रिड्यूस्ड एरे मिल गई। अब एक बूल बना लिया, सिंपली n क्यूब की अप्रोच लगाई, ठीक है, सिंपली चेक किया इफ़ रिड्यूस्ड एरे में i, j और k का सम जो है वो मॉडुलो 10 करने पे 3 है तो यहीं पे फ्लैग को ट्रू कर दो और ब्रेक कर जाओ, और अगर फ्लैग ट्रू है प्रिंट yes, otherwise print no। okay, so thank you guys for watching this video. If you still have any doubt you can simply ask me in comment section again, okay, and if you haven't subscribed this YouTube channel just go subscribe this YouTube channel, like this video, share this video to your friends। अगर न्यूटन स्कूल के पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम में अभी तक रजिस्टर नहीं किया, जस्ट गो इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, रजिस्टर इन दिस पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम and get the most out of it, okay, because you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of the company। Thank you guys for watching।